did you go? I went to London. Really? Did you have a good time? Yes, I did. What was the weather like? Well, it wasn't raining as much as I expected. I didn't have my umbrella with me, so I'm glad I didn't need to use it. What places did you visit? I visited museums, cathedrals, some shops. I really enjoyed the ride in the London Eye. I liked everything there. It sounds nice. Would you tell me something more about your stay in London in a cafe? Sure, let's go. Now you have heard the conversation between the two girls, Alice and Susan. And here is the written form of the conversation that went on between Susan and Alice. Now I'm reading the conversation. Alice said, "Oh, hello, Susan." Susan said, "Oh, hi, Alice. How are you?" Alice said, "I'm fine, thanks. I came from abroad yesterday." Susan asked, "Where did you go?" Alice replied, "I went to London." Susan asked, "Really? Did you have a good time?" Alice said, "Yes, I did." Susan asked, "What was the weather like?" Alice replied, "Well, it wasn't raining as much as I expected. I didn't have umbrella with me, so I'm glad I didn't need to use it." Susan asked, "What places did you visit?" Alice replied, "I visited museums, cathedrals, some shops. I really enjoyed the ride in the London Eye. I liked everything there." This is the written form of the conversation between Alice and Susan. Now you look at the conversation and see the types of sentences in the conversation. You will find different kinds of sentences. Remember one thing, when you are going to learn changing narration from direct narration to indirect narration, you must have the knowledge of the type of the sentences. I have uploaded the video on types of different sentences like assertive sentence, exclamatory sentence, imperative sentence, optative sentence, and so on. So a student who wants to learn the change of narration must have the mastery over the different types of sentences. If he fails to identify the kind of sentence, whether it is an affirmative sentence or negative sentence or an interrogative sentence, he won't be able to convert the narration. So it is necessary. Besides, he must have the knowledge of the tense of the sentence. If a student does not know the tense of the sentence, whether it is whether the sentence is written in the simple present or written in the simple past, or the sentence or the tense of the sentence is present perfect tense or present continuous tense, he won't be also able to change in narration. So my request is to every student is, before going to learn how to change the direct speech into indirect one, he must know first of all the different types of sentences and he must identify the tense of the sentence. These two things are very necessary before you go to learn to change the narration. So in this conversation, you see this is an interrogative sentence. How are you? Where did you go? This is also an interrogative sentence. What was the weather like? It is also an interrogative sentence. And well, it wasn't raining. It is assertive sentence. I visited museums, cathedrals, some shops. It is also assertive sentence. So a conversation may consist of assertive sentence, operative sentence, exclamatory sentence. So this is necessary before you go to learn to change the direct speech into indirect one. Now look here. Susan asked, "Where did you go?" Now look,
the actual words of Susan, where did you go? You have heard the conversation of Susan. Susan asked Alice, where did you go? Where did you go? These are the actual words of Susan, which are kept within the inverted comma. मतलब सूजन ने जो उस एलिस से पूछा था कि वेयर डिड यू गो, तो वेयर डिड यू गो ये उसका एक्चुअल वर्ड है, यही अल्फाज सूजन ने कहा था, वेयर डिड यू गो। ये वेयर डिड यू गो ये जो अल्फाज है, दीज वर्ड्स आर केप्ट विद इन द इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, और उसके वर्ड्स को कोई चेंज नहीं किया गया था, ज्यों का त्यों एग्जैक्ट वर्ड्स आर प्लेस्ड हियर। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं सूजन आस्क्ड वेयर डिड यू गो, इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच। ये पूरा जो यहां से यहां तक है सूजन आस्क्ड वेयर डिड यू गो, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब यहां पर देखिए इस सेंटेंस को कि सूजन आस्क्ड एलिस वेयर शी हैड गॉन। अब यहां पर ये जो देख रहे हैं इटैलिक्स में है, यहां पर क्या है, वर्ड्स को सूजन के वर्ड्स को पूरा चेंज कर दिया गया है। सेम वर्ड्स एग्जैक्ट वर्ड्स को यहां पर सूजन को नहीं रखा गया है। द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ सूजन आर चेंज्ड हियर बट द मीनिंग इज द सेम। दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको समझ में आया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। कम से कम इसके स्ट्रक्चर से आप पहचान जाएंगे कि अगर इस तरह से सूजन आस यहाँ कॉमा दिया रहेगा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टेटमेंट अगर है तो वो डायरेक्ट स्पीच रहेगा, और इस तरह से अगर रहेगा कि सूजन आस एलिस वेयर शी हैड गॉन, इस तरह से अगर बना रहेगा, मतलब जहां पर इन्वर्टेड कॉमा को हम रिमूव कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहां पर देखिए सूजन आस्क्ड वेयर डिड यू गो। अब यहां पर देखिए इस पार्ट में कॉमा से जो पहले है ये जो सेंटेंस है सूजन आस्क्ड, ये जो आस्क्ड है दिस इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। याद रखिएगा इस डायरेक्ट स्पीच का ये जो वर्ब है आस्क्ड, दिस इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो हिस्सा है विद इन द इन्वर्टेड कॉमा वेयर डिड यू गो, दिस इज कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच। ये स्पीच है जिसको रिपोर्टेड किया गया है, ठीक है। तो ये पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, आई आस्क्ड जो है इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ये पूरा का पूरा क्या हुआ, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो क्या हुआ कि दस द डायरेक्ट स्पीच इज कंपोज्ड ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टेड स्पीच। तो पूरा डायरेक्ट स्पीच दो चीज से मिलकर बना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब से और रिपोर्टेड स्पीच से। नाउ फॉर्मेट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट स्पीच होता है कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ इट, इट हैज 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट 3 तरह से होता है। जैसे एक नंबर में देखिए ही सेड आई एम एन इंजीनियर। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच है। आई एम एन इंजीनियर रिपोर्टेड स्पीच हो गया और सेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ये एक फॉर्मेट हुआ। दूसरा फॉर्मेट देखिए नो गुड विल कम ऑफ द विंड कैप शी सेड। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच पहले है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में है, ठीक है। ये रिपोर्टेड स्पीच पहले है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में। 3 नंबर देखिए रूल्स आई सेड आर नेसेसरी थिंग्स। अब इसमें देखिए कि आई सेड ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है ये बीच में है, उससे पहले रिपोर्टेड स्पीच का एक पार्ट, वन पार्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज बिफोर द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद है। तो आपको कहीं भी डायरेक्ट स्पीच जो है ये 3 तरह में से कोई एक तरह से नजर आएगा। आप जब भी किताब पढ़ेंगे, व्हेन यू रीड ए paragraph, you read a story, you may have any of the 3 type of the direct speech, format of the direct speech, इसी तरह के आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये हुआ फॉर्मेट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम एन इंजीनियर, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पहले है, रिपोर्टेड स्पीच बाद में है। इसमें रिपोर्टेड स्पीच पहले है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब बीच में है और रिपोर्टेड स्पीच का
फर्स्ट पार्ट या टुकड़ा वो पहले है, और रेस्ट पार्ट जो बकिया जो हिस्सा है वो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में है. नाउ in a conversation, two persons are involved. When two persons are talking to one another, when two persons are talking to one another, जब conversation होता है तो उसमें दो ही लोग होते हैं. पहला होता है the speaker और दूसरा होता है द पर्सन स्पोकन टू. माने एक होता है मुतकल्लिम और दूसरा होता है मुखातिब. एक बोलने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है. द स्पीकर मतलब जो बोल रहा है और दूसरा आदमी सुन रहा है, उसको हम बोलते हैं द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात कही जा रही है. तो किसी भी कन्वर्सेशन में याद रखिएगा, देयर आर ऑलवेज टू पर्सन्स. फर्स्ट द स्पीकर हु स्पीक्स, द पर्सन स्पोकन टू हु लिसन्स टू द स्पीकर, जो स्पीकर को सुनता है. अब एक और चीज देखिए कि जो कन्वर्सेशन होता है, अब कन्वर्सेशन में क्या होता है, द स्पीकर में से समथिंग अबाउट हिमसेल्फ, द पर्सन स्पोकन टू, एंड और यहां पर और कर दिए, और द पर्सन स्पोकन अबाउट. मतलब जो कन्वर्सेशन, जब दो आदमी जब कन्वर्सेशन करते हैं तो बातचीत में क्या होता है, बातचीत में जो स्पीकर जो है या तो अपने मुतालिक कुछ बातें करता है, या जो स्पीकर होता है द पर्सन स्पोकन टू, जो सुन रहा है उसके मुतालिक कोई बात कहता है, या द पर्सन स्पोकन अबाउट, या किसी ऐसे पर्सन के बारे में मैंने बयान करता है जो वहां पर गैर हाजिर है. मतलब जो मुतकल्लिम है और जो मुखातिब है, इसके दरमियान में जो गुफ्तगू हो रही है, तो गुफ्तगू में क्या होता है, स्पीकर या तो अपने मुतालिक कोई बात कहेगा, या मुखातिब के मुतालिक कोई बात कहेगा, या किसी ऐसे पर्सन के मुतालिक कोई बात कहेगा जो उस वक्त वहां मौजूद नहीं, जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं. ठीक है. तो द स्पीकर में से समथिंग अबाउट himself, the first person. The speaker may say something about the person spoken to, the second person, or the speaker may something about the person spoken about, third person. तो बोलने वाला या तो फर्स्ट पर्सन के बारे में कोई बात कहेगा, या तो सेकंड पर्सन के बारे में, या थर्ड पर्सन के बारे में. अब जो भी डायरेक्ट स्पीच है, अब आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि इन ए डायरेक्ट स्पीच इट इज नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज द स्पीकर, द पर्सन स्पोकन टू, एंड द पर्सन स्पोकन अबाउट. अब डायरेक्ट स्पीच जो रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है, जो आपको लाइन जो लिखा हुआ है कॉमा विद इन इन्वर्टेड कॉमा देकर, तो उसमें ये आपको पहचानने कि हु इज द स्पीकर, हु इज द पर्सन स्पोकन टू, एंड हु इज द पर्सन स्पोकन अबाउट. माने उसमें स्पीकर कौन है, जाहिर सी बात है जो फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट होगा वो स्पीकर होगा. ठीक है. और जो ऑब्जेक्ट होगा वो पर्सन स्पोकन टू होगा, और जो थर्ड पर्सन होगा वो पर्सन स्पोकन अबाउट होगा. तो आपको ध्यान में रखना है. तो आप देखिए, द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज द स्पीकर. अब स्पीकर कौन होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा. ऑब्जेक्ट कौन होगा, द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन स्पोकन टू, जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, वो क्या होगा, उस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा. एंड द पर्सन स्पोकन अबाउट मे बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और द थर्ड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. अब रिपोर्टेड स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच में जो थर्ड पर्सन होगा वो आपका पर्सन स्पोकन अबाउट हो सकता है. मतलब रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन स्पोकन अबाउट कौन होगा, या तो सब्जेक्ट हो सकता है, या ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन. जैसे यहां पर एग्जांपल देखिए, जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई इज जुल्फिकार एब्सेंट. आप देखिए यहां पर सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, टीचर, ये स्पीकर हो गया. स्टूडेंट्स, ये सेड का ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया द पर्सन स्पोकन टू. ये हो गया स्पीकर, द टीचर स्पीकर, द स्टूडेंट्स हो गया पर्सन स्पोकन टू. व्हाई इज जुल्फिकार एब्सेंट. अब ये रिपोर्टेड स्पीच में जुल्फिकार एक थर्ड पर्सन है, ये हो गया पर्सन स्पोकन अबाउट. ओके. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई इज जुल्फिकार एब्सेंट. तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो होगा वो
स्पीकर हो सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ स्टूडेंट्स है, वो पर्सन स्पोकन टू होगा, और रिपोर्टेड स्पीच में जो थर्ड पर्सन होगा वो पर्सन स्पोकन अबाउट होगा। अब यहाँ पर जो जुल्फिकार जो थर्ड पर्सन, अब यहाँ पर माने फर्स्ट पर्सन, अगर यहाँ पर जो है टीचर भी हो सकता है, यहाँ कोई भी हो सकता है। कभी भी किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर यहाँ का पर्सन यहाँ हो सकता है, या यहाँ का पर्सन यहाँ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसको आपको पहले देखना है कि एक डायरेक्ट स्पीच में हु इज द स्पीकर, हु इज द पर्सन स्पोकन टू, एंड हु इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट वन। अब देयर आर सर्टेन रूल्स, कुछ रूल्स है, इसको आपको पहले जान लेना होगा। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि नरेशन बनाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सेंटेंस का टाइप क्या है और टेंस क्या है। इफ यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स, यू विल not be able to learn the narration. अब देखिए, if the reporting verb is in the past, अब जो डायरेक्ट स्पीच है, उस डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, जैसे कि said लिखा हुआ है या asked लिखा हुआ है, तो the tense of the reported speech is changed. तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई इज जुल्फिकार एब्सेंट। अब यहाँ पर ये सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पास्ट टेंस में है। तो अब जब हम इसको, इस डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब बनाएंगे, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस जो है चेंज हो जाएगा। बार बार याद रखिए, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। अब कैसे टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट बिकम्स सिंपल पास्ट, एकदम सीधा याद रखिएगा। माने प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, यानी सिंपल प्रेजेंट बिकम्स सिंपल पास्ट। दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, जो सिंपल प्रेजेंट बिकम्स सिंपल पास्ट, मतलब अगर यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में वर्ब अगर गो है तो सिंपल पास्ट में वो वेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज प्लेइंग है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? वॉज प्लेइंग हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज डन है तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? हैड डन हो जाएगा। माने हैज हैड हो जाएगा, इज वॉज हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। और अगर कोई टेंस अगर सिंपल पास्ट में है तो उसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट में। जैसे किल्ड है, किल्ड पास्ट टेंस में है तो इसका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा हैड किल्ड। वो हम जब बनाएंगे तो फिर वहां पर हम लोग देख लेंगे, पहले इसको रूल को समझ लीजिए। और इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, अब अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा स्टेटमेंट है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसके टेंस को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इट्स टेंस इज नॉट चेंज। अब यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स कैसा होता है? जैसे देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट। तो इसका इस तरह का जो सेंटेंस जब भी होगा तो उसका हम लोग टेंस को चेंज नहीं करेंगे। जैसे 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। मेटल एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, मेटल को जब भी हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? पिघलेगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस तरह के यूनिवर्सल स्टेटमेंट से उसको हम चेंज नहीं करते हैं। अब कुछ और भी चेंजेस होता है, जैसे देखिए, सम मोर चेंजेस। विल बिकम्स वुड, shall becomes should, may becomes might, can becomes could, now becomes then, here becomes there, ago becomes before, thus becomes so, today becomes that day, tomorrow becomes the next day, yesterday becomes the day before, लास्ट नाइट becomes द नाइट बिफोर। तो ये कुछ चेंजेस है, इसको आप याद रखिएगा।
वैसे प्रैक्टिस जब करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते खुद ब खुद जो है ऑटोमेटिकली माने इट विल गो इनटू योर ब्रेन, ये आपके दिमाग में ढुक जाएगा। तो ये जो रूल्स यहाँ पर जो दिया हुआ है कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट हो जाता है, इसको रूल्स को आप याद रखेंगे। ये रूल्स याद रहेगा तो यू विल इजीली चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब एक और चीज होता है चेंज ऑफ पर्सन, मतलब जो डायरेक्ट स्पीच होता है जाहिर सी बात है उसमें एक स्पीकर होता है वो बोलता है, और एक होता है द पर्सन स्पोकन टू वो सुनता है, या किसी के बारे में कहा जाता है। तो जाहिर सी बात यहाँ पर कुछ पर्सन्स हैं, ठीक है, इस पर्सन को भी जो चेंज करने पड़ता है, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन होता है जो विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स में उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, उसमें जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई और वी, तो ये चेंज हो जाता है सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसमें उसको हम चेंज कर देते हैं। उसी तरह से सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, मैंने रिपोर्टेड स्पीच में जो सेकंड पर्सन है जैसे यू, तो ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, जो कॉमा से पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका जो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का कोई चेंज नहीं होगा, जैसे ही है, शी है, दे है, तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो इस तरह से चेंज ऑफ पर्सन हुआ। तो आज हमने जो मैंने नरेशन के जो बारे में बताया, इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द नरेशन। नरेशन होता क्या है, आइंदा जब हम लोग क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू चेंज, हाउ वी आर चेंजिंग, हम नेक्स्ट क्लास में उसको चेंजेंगे। तो आज का मेरा लेसन में बस यही था कि पहले के ये क्या कहा जाता है कि नरेशन क्या होता है। नरेशन में डिफरेंट टाइप्स के जो है माने सेंटेंसेस होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव वगैरह वगैरह। डायरेक्ट स्पीच आप जान गए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में ये आज को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इस पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इस तरह से डायरेक्ट स्पीच में दो चीज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच हो गया। फॉर्मेट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इस तरह का होता है, किसी में रिपोर्टिंग पहले रिपोर्टिंग वर्ब आएगा उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच, किसी में रिपोर्टेड स्पीच पहले रहेगा उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब होगा। कभी कभी होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है दरमियान में रहेगा। रिपोर्टेड स्पीच को दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब से पहले, दूसरा हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद होता है। और जब भी कन्वर्सेशन होता है तो दो लोग जब आपस में कन्वर्स करते हैं तो दो ही लोग होते हैं, एक स्पीकर दूसरा लिसनर। स्पीकर या तो अपने बारे में कुछ कहेगा, या किसी लिसनर के बारे में कहेगा, या किसी कोई गैर हाजिर पर्सन के बारे में कोई बात कहेगा। इसलिए हमको कोई भी जब डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा तो उसमें हमको ये रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि इसमें स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है, एंड पर्सन स्पोकन अबाउट कौन है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होगा वो स्पीकर होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होगा वो पर्सन स्पोकन टू होगा, और रिपोर्टेड स्पीच में जो थर्ड पर्सन होगा वो पर्सन स्पोकन अबाउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये रूल्स हैं, रूल्स हम बतला दिए, ये भी रूल मालूम हो गया। तो ये था आज का हमारा क्लास नरेशन के ऊपर में। हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास अच्छी तरह समझ में आएगा। Thank you very much till we meet next class. Rutba,